Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now we'll talk about the imperfections in solids. So far you have studied about the crystal structure in the materials, but the thing is, there is nothing like perfect crystal. In practice, there are always defects within a crystal system. Okay, so we'll see what kind of imperfection are these and why they are important. So thing is, there are many properties which depend upon the imperfections, because the presence of imperfections can affect the performance of the material. For example, the surface, particularly for the surface properties, the imperfections are quite important, and particularly for catalysts, the defected surfaces and imperfect surfaces are better if the material has to perform as a catalyst. Usually that's the case. Strength के केस में it can go either way. I mean, in the theoretical calculations, the strength is quite high. So if the crystal can be produced theoretically exactly as a theoretical model, then the strength of the material would be much higher. But practically, there are always imperfections in the system. They might be incorporated during solidification. Many imperfections are thermodynamically stable, so they are naturally occur in the material. So that's why the strength of the material gets lowered. Now the imperfections can be played with or used in such a way that it can be used to increase the current strength of the material. So for example, for the case of steel, the dislocations are also considered imperfections. We'll study it soon, and we can increase the number of dislocations within a material. And dislocation is an imperfection, but the increase of the dislocation in the material increases the strength of the material. So we can use the imperfections to improve the strength of the material, to improve the performance of the material. And imperfections always occur spontaneously in the material, and we can incorporate it through various processes as well. Usually in the case of electrical properties, the imperfections decreases the electrical conductance, electrical behavior of the material. So that's why usually in that case the lower imperfections level is required. Okay, so there are first we'll see different kinds of imperfections. So there are various types of imperfections, such as point defects, and within a point defect, a vacancy atom is a defect, an interstitial atom is a defect, a substitutional atom is a defect. Vacancy as in the atom, the present vacancy means in FCC structure, for example, there should be an atom at the phase center of the material. Let's say if that atom is missing, then there is a vacancy of that atom at that particular point. So that vacancy is a defect or an imperfection. That is called point defect, because any vacancy means the atom where it should be present theoretically, and if it is not present there, that place will be called a vacancy, and that is a point defect because there is a single point in the crystal which has a defect. That's why it's called point defect. Same way there can be interstitial atom defects, because interstitial, as in there are, as we have discussed in the system, in the crystal structures, there are empty spaces within the atoms, and if a small atom comes into that empty spaces, that is called interstitial defect. Why? Because in theory there should not be an atom there in the, like you have studied in the crystal structure, but if we can add an atom there, then it will become an interstitial solid solution, and that point where the atom has been added, that would be an interstitial defect. Okay, and once again it's a point defect. Substitutional defect, as in an atom is substituted with another type of atom. For example, with the atom of another element. For example, brass is a solid solution of copper and zinc. पीतल जो है that is a solid solution of copper and zinc. तो इसमें क्या होता है कि copper is the main crystal, copper is the main material, and when the zinc is added into it,
at the crystal level, the copper atoms are replaced with the zinc atoms. So so zinc is replacing copper atoms. So each replacement will be considered as a defect. Okay, so that will affect the properties. For example, the conductivity of the brass is lower than the copper. That's why the copper wires are usually used in the home wiring. However, the strength of the brass is more likely to be higher than the pure copper. So it depends what is the application or where we are going to use the material, and how we can use the imperfections to improve the properties. Lower imperfection is needed in the electrical case for the copper, but the higher imperfection are needed for the case to increase the strength of the material. So it depends what kind of imperfection. There are some kind of imperfections which can increase the strength of the material. Those kind of imperfections are desired when the high strength is desired in the material. Okay, so it depends what kind of application we are using and what kind of imperfections we are talking about, and so on and so forth. Okay, so next type is you can say the dislocations which are the line defects. Okay, so line defects are the defects which can be represented as a line. So point is a single point, and you can say when the points are joined in a row, they form a line. So this dislocation, these are called the different type of line defects. We will discuss only the dislocations. Dislocation means there is an array of atoms which are defects within a system. So if there is a single point atom, there is one atom defect, then it is a point defect. There is if there are line of atoms which are defects, then it's called a line defect. And one of the examples of line defect is dislocations. We'll soon discuss what are dislocations, how they are formed in the material. And then the next type is the area defects. Okay. Area defects are grain boundaries. Grain and crystal are interchangeably used. One grain is one crystal and one crystal is one grain. At the atomic level, when we see the crystals, different crystals are called different grains as well. Okay, and the surface of a crystal is a 3D object, but the surface of the crystal is 2D, because surfaces are 2D. Mathematically, they are represented as 2D things. So the area is also two-dimensional. So the surface of the surface of a crystal or a grain is called a grain boundary. Okay, when any surface of a 3D object is can be considered as an area, and if that surface makes a defect, then it's called area defects. Okay. So when two surfaces meet, they do not have a regular structure at the meeting point. When two crystals meet, they don't have a regular arrangement of atoms at the meeting point. So that point becomes an area defect. Okay. So here is an example that, for example, there is a regular arrangement of atoms. You can see, as there should be in a crystal. But if there is a one atom missing here, let's say that is removed, then that point is called a vacancy, and there is a defect introduced here. This is called a vacancy defect. Okay, so these vacancy defects are thermodynamically stable. The presence of vacancies increases the entropy of the system, and as you know from thermodynamics, the entropy tends to increase within a system. So these defects are thermodynamically stable above 0 Kelvin, and they tend to form within a material. Okay, so this kind of vacancy defect is an example of point defect. Okay, so there can be various type of defects. For example, this atom can move into this interstitial position, then it will be called self-interstitial, and if a foreign atom comes here, then it will be called interstitial defect. Okay, these are different types of crystal defects. So we will discuss how can these defects, how many defects can form within a system or within a material. It depends upon the type of defect which is going to form, and also on the temperature at which the defects are going to form. So for example, this is the equation which usually governs this type of vacancy defects. Okay, so NV is the number of defects, number of vacancy defects, and for number NV is, and N is the total number of potential sites.
Potential sites as in the places where defects can form. So for the vacancy defect, the vacancy will form only where the atom is already present. Okay, vacancy क्या होता है? Vacancy means there is a place which is empty. Okay, so all in the crystal structure, all the places where the atoms should present, if there is any atom is missing, that will be a vacancy. So all the places where atoms are present are the potential defect sites. Okay, so number of places or number of points or sites where the atoms are missing, that will be number of defects. इन दोनों की जो ratio है, the ratio of these two is equal to the exponent of the activation energy for this vacancy defect. जितने भी सिस्टम है यूजुअली नेचर में दे हैव टेंड टू हैव एन एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स जिससे आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा ही होगा, एक्टिवेशन एनर्जी एंड केमिस्ट्री में ये है पॉइंट ना कि रिएक्टेंट्स, एक साइड पे रिएक्टेंट्स, एक साइड पे प्रोडक्ट्स एंड देयर इज एन एक्टिवेशन एनर्जी, दिस एनर्जी बैरियर एंड द रिएक्टेंट्स टेंड टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स आफ्टर दे गो over this energy hump. Okay, so this activation energy height defines how many defects will form. For example, here is the value of energy. So thermodynamically this this side, from this side the reactants tends to go to the product side because this has the lower energy level than this point. Okay, thermodynamically this transfer is stable. However, there is an energy barrier which tends to stop or govern this rate of reaction. So if the activation energy is lower, it means that more reactants can go into the products. If the activation energy is higher, for example, if activation energy is like this, then for example, if the activation energy barrier is higher, then it will be difficult to go from here to this side. So because it will be difficult, then the that's why the you can say there will be less product formed for this particular reaction. Okay, so vacancy can also be considered as this reaction where the the vacancy production or vacancy generation is governed by the similar process. If there is activation energy is higher, then there will be lower vacancies at the in the material, and if the activation energy is lower, then there will be more material. There will be more vacancies in the system. सब इस तरह भी समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल के जिस तरह आप किसी भी क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो क्लास में लेट्स से डोर से भी आ सकते हैं, लेट्स से खिड़की से भी आ सकते हैं, विंडो से भी आ सकते हैं, ठीक है. तो मोस्ट लाइकली आप दरवाजे से आएंगे, उससे आना ईजी है, फिजिबल है. सो लेट्स से दरवाजे से आने की जो एक्टिवेशन एनर्जी आने क्लास में आने की जो प्रोसेस है, हम कह सकते हैं प्रोसेस है जो स्टूडेंट ने करना है. एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लेट्स से डोर से आएगा तो कम है, खिड़की से आएगा तो ज़्यादा है, ठीक है. सो मोस्ट लाइकली आप लोग जिस तरह है कि डोर से आएंगे, खिड़की से नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी उसकी लेट से ज़्यादा है, तो उससे आना मुश्किल है. तो कम लोग हो सकता है, कुछ लोग जिस तरह कुछ लोगों को शौक होता है कि वो जनाब खिड़की से भी कूद के आ जाएं, तो कुछ लोग आ सकते हैं. लेकिन द थिंग इज़ के अगर डोर से आना अवेलेबल है तो मोस्ट लाइकली लोग डोर से आएंगे, ठीक है. लेट्स डोर से आना जो है इसे हम कहेंगे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी सिस्टम, तो वहाँ से लोग आ जाएंगे, ठीक है. और जो हायर एक्टिवेशन एनर्जी वाली साइड है, फॉर एग्जांपल द विंडोज, देन इट विल बी लेस लाइकली दैट द पीपल विल कम फ्रॉम दैट पॉइंट. सो देयर विल बी लोअर नंबर ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर प्लेस और इन द क्लास. So that's what the concept of the activation energy, ठीक है. K is here is a Boltzmann constant, ठीक है. T is the temperature in Kelvin. So this is the question that governs the activation of any process and the number of defects which are produced within a system, ठीक है. Boltzmann constant की वैल्यू जूल पर एटम केल्विन में भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी, दोनों में गिवन है, ठीक है. डिपेंड्स अपॉन के कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे. इंटरनेशनल ऐसा ही सिस्टम है तो जूल्स में वैल्यू लेंगे, समटाइम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सिस्टम भी यूज़ करते हैं, ठीक है. डिपेंड करता है कौन सा दूसरी वैल्यूज़ कौन सी सिस्टम में है, ठीक है. अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लेंगे, जूल में कर लेंगे, ठीक है. सो हम इसी को अगर हम आगे देखें,
कि फॉर एग्जांपल अगर कैलकुलेट करना है, मेजर करना है एक्टिवेशन एनर्जी, तो प्रैक्टिकली किस तरह मेजर की जाती है, ठीक है। तो लेट्स सी ये इक्वेशन है जो इसे गवर्न कर रही है। तो क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज हम फाइंड करते हैं, कितनी जनरेट हो रही है उसकी रेशियो लेते हैं विद एन दैट हैज़ एन एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर। किस तरह पता चला, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है, एक्सपोनेंशियल माइनस टी, ठीक है, -1/t। तो इट हैज़ एन एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंस। सो डिफेक्ट कंसंट्रेशन, लेकिन इसको मॉडल करना है या इससे इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालना ये डिफ़िकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, लॉग एल एन वी ओवर एन की वैल्यू लेते हैं, नेचुरल लॉग। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल को इधर लेके जाएंगे तो एन वी ओवर एन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, -q/k t, ठीक है। तो 1/t को अगर यहाँ पे प्लॉट किया जाए, 1/t अगेंस्ट एक्सपोनेंशियल इधर चला गया, ln बन गया, ठीक है। तो यह क्या बन जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, यहाँ से फिर इसे इधर ले जाएंगे तो ये 1/t के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि लेट्स से a इज इक्वल टू bx, ठीक है, या ऐसे a की जगह y कह लें, ठीक है। तो y यहाँ पे है, x यहाँ पे, x 1/t है, y यहाँ पे ln nv/n है, ठीक है। तो ये b क्या होगा, कांस्टेंट है, ये -q/k है, ठीक है। तो यही जो कांस्टेंट है दैट इज स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। इस तरह हमने जिस तरह यंग मॉडुलस भी होता है दैट इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, तो उसमें क्या होता है, स्लोप ही फाइंड करते हैं। तो माइनस इसलिए है कि ये स्लोप नेगेटिव होगा, तो इस स्लोप की वैल्यू अगर फाइंड कर लेंगे तो q/k की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ पे फिटिंग करना मुश्किल है, तो हम यहाँ पे फिटिंग करके इजीली लीनियर से ग्राफ से फाइंड वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये तब है जब मैं एक्सपेरिमेंटली कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से अगर एक और सिचुएशन है जिसमें ये चीज़ें गिवन है, तो अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज फाइंड करनी हो, ये न्यूमेरिकलाइज हम सॉल्व कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो लेट्स से एक इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ वैकेंसीज फाइंड करनी है। इक्विलिब्रियम एज इन के वैकेंसीज जो हैं वो रिमूव भी होती हैं जब वहाँ पर कोई आइटम आ जाता है, अगर आइटम वहाँ से मूव कर जाता है तो जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मतलब जो रिएक्शन है वो चलता रहता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ती जाती है, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ वैकेंसीज या नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या लें फाइंड करनी है, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब कॉपर की डेंसिटी भी गिवन है, लेट्स से यहाँ पे एटॉमिक मास भी गिवन है, इस ये वैल्यू भी गिवन है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी गिवन है, एवोगाड्रोस नंबर भी गिवन है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन होगी, ठीक है, जिस तरह अगर चाहिए हो तो हम इसे क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। ये वैल्यू गिवन है ऑलरेडी क्यों, ठीक है। ये वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, क्योंकि ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। अगर ये वैल्यू किलो जूल में होगी तो हम ये भी किलो जूल या जूल वाली यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जो भी यूनिट्स होंगे वो सिमिलर यूनिट्स यहाँ पे लेंगे। टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर केल्विन में, इसलिए 1000 यहाँ पे लिखेंगे, 1273 केल्विन है, ठीक है। अब यह कि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ पोटेंशियल साइट्स यूज़ करनी है। मैंने बताया नंबर ऑफ पोटेंशियल साइट्स जो जहाँ पे वैकेंसी जनरेट हो सकती है दैट इज इक्वल टू द नंबर जहाँ पे atoms available, okay. So that's why this n which is the this is n which is the number of potential sites is equal to the number of atoms within a perfect crystal, ठीक है। तो अगर परफेक्ट क्रिस्टल जिसका हमने किसी स्ट्रक्चर में कैलकुलेट किया था, हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर में, ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर में जितने एटम्स होंगे वही नंबर ऑफ पोटेंशियल साइट्स है। लेट्स से 1 मिलियन एटम्स है वहाँ पे, ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर में। तो कोई भी एटम अपनी जगह पे नहीं होगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा तो वो जगह वैकेंसी बन जाएगी, विच मीन्स के पोटेंशियल साइट्स कितनी हुई 1 मिलियन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 1 मिलियन एटम्स अवेलेबल हैं थ्योरेटिकली, या कैलकुलेशन जो थ्योरेटिकल या जो परफेक्ट क्रिस्टल है उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1 क्यूबिक मीटर में कितने कॉपर होंगे, कॉपर के एटम होंगे, ठीक है। तो इससे हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय here is the
एटॉमिक वेट ऑफ द कॉपर, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर से, या आप इसे 10⁻⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर से इसलिए कि ये 1 मीटर को कन्वर्ट करें क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और क्यूबिक सेंटीमीटर में इसलिए लिया है कि डेंसिटी जो है इसकी वैल्यू क्यूबिक सेंटीमीटर में है, ठीक है। अगर डेंसिटी की वैल्यू ग्राम पर क्यूबिक मीटर में होती तो हम यहाँ भी मीटर यूज़ कर लेते, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर में है तो इस वजह से यूज़ कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि यूनिट कन्वर्जन में कि जो यूनिट यूज़ कर रहे हैं थ्रू आउट वही यूज़ हो। यहाँ पे भी ग्राम्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर जो है ये ग्राम मोल का है, एटम्स पर मोल, ये ग्राम मोल है, ठीक है। तो डेंसिटी ग्राम में, ठीक है, ये भी ग्राम मोल यूज़ कर रहे हैं। तो डेंसिटी को जब डिवाइड करते हैं, इसी समझ डेंसिटी क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। जब मैस को डिवाइड करते हैं एटॉमिक मैस एटॉमिक नंबर से, तो क्या फाइंड होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को जब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे आ जाते हैं नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो डेंसिटी क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू हमें पता चल गई, कितना वॉल्यूम हमने यूज़ करना है उसे उतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये साइड्स आ जाएंगी, ठीक है। तो इतनी साइड्स या इतने एटम्स जो हैं ये अवेलेबल हैं विद इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एटम। So 1 cubic meter of copper will have 8 into 10⁻28 atoms. So all the atoms are potential sites. So this will be equal to the number of sites, which potential sites where the vacancy can be formed. So अगर यही क्वेश्चन आपसे लेट से पूछा जाए कि 1 cubic meter of copper में कितने एटम्स होंगे, तो आप सेम मेथड यूज करेंगे, सेम प्रोसेस यूज करेंगे, और ये नंबर ऑफ एटम्स होंगे जो कॉपर के होंगे 1 क्यूबिक मीटर में। आप देख सकते हैं इट्स अ ह्यूज नंबर, ओके। सो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो जो आंसर आएगा नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट इज 2.10⁻25 वैकेंसीज, दैट इज वेरी हाई नंबर ऑफ वैकेंसीज। ये क्यों है, क्योंकि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है कॉपर का वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ा सा ही ऊपर है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट के आप जितना करीब जाती हैं किसी मटेरियल के उतने उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ती जाएंगी, तो मेल्टिंग पॉइंट के करीब बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। इस वजह से इतनी हाई है। रूम टेम्परेचर पे क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंस है तो इसकी निस्बत काफ़ी कम होंगी। स्टिल द नंबर में भी मिलियंस आर मोर, बट स्टिल दैट इज क्वाइट लो, दैट इज व्हेन कंपेयर्ड विद दिस नंबर ऑफ वैकेंसीज। 1 मिलियन क्या होता है 10⁻6, 1 बिलियन क्या होता है 10�9, बट दिस नंबर इज वेरी हाई। But the thing is, this number is compared with this number, which is the actual number of atoms within in 1 cubic meter, ठीक है। तो इसलिए हम ये रेशियो यूज करते हैं कि दिस रेशियो विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो जितना मर्जी वॉल्यूम देख लें उसमें हम डिफाइन कर लेंगे कितनी है, लेकिन दिस इज द रेशियो, जिस तरह परसेंटेज रेशियो डिफाइन करते हैं, सो एज टू हैव द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वॉल्यूम, ठीक है। Okay, so this is how the vacancy concentration can be estimated in a particular material at a particular temperature for a particular type of defect. Vacancies के लिए activation energy different होगी। अब यहीं पे अगर vacancies व interstitial defect की बात करेंगे तो interstitial defect की फिर यहाँ पे क्या कहते हैं activation energy यूज होगी, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स जो है उनकी एक्टिवेशन एनर्जी है, उनकी इक्वेशन जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। वैकेंसी इंटरस्टिशियल के लिए आमतौर पे सिमिलर जो ये इक्वेशन है ये होल्ड करती है, ओके। सो नेक्स्ट जिस तरह हम सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, और सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन एज इन फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने इसमें ब्रास की बात की, दैट इज एन लाइफ कॉपर एंड जिंक। फॉर एग्जांपल ये सारे एटम्स कॉपर के हैं, इन एटम्स को आप समझ लें कॉपर के, इस तरह परफेक्ट क्रिस्टल होनी चाहिए थी। जब एक एटम को किसी भी एटम को रिप्लेस कर दिया, लेट्स से जिंक के एटम ने, कोई भी सॉल्यूशन में कोई दूसरे एटम ने, तो इससे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल एज इन के एक एटम को दूसरे एटम से सब्स्टिट्यूट किया है। ये जो इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन, इंटरस्टिशियल एज इन के ये एटम को, नए एटम ने इस एटम को रिप्लेस नहीं किया। ये जो इसमें जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस हैं जो नेचुरली अवेलेबल होती हैं स्पेस के दरमियान या एटम्स के दरमियान, वहाँ पे एटम ऐड हुआ है, इसे कहेंगे इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन। कॉपर इन आयरन, दैट इज इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन एग्जांपल। और जो स्टील जो है दैट इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, ठीक है। तो जो स्टील है वो मोस्टली इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन है इन दोनों का, ठीक है। तो इसमें कॉपर एज ए डिफेक्ट ऐड होता है, उससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये जो है कॉपर और निकल का जो सॉल्यूशन है इसे हम आमतौर पर जिंक कहते हैं, इसको आमतौर ब्रास कहते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, कॉपर जिंक का जो है, कॉपर निकल का जो है उसे हम आमतौर पर ब्रॉन्ज कहते हैं, ठीक है।
सो अब सॉलिड सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन तो आपको पता है, जिस तरह दो चीज़ों को डिसॉल्व करते हैं एक दूसरे के अंदर, उसको हम कहते हैं सोल्यूशन। जिस तरह सॉल्ट को वाटर के अंदर ऐड कर लें या शुगर को ऐड कर लें, दैट इज सोल्यूशन। ठीक है, सॉलिड सोल्यूशन एज इन के जो सोल्यूशन है वो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, जिस तरह पानी के अंदर अगर ऐड किया है इसको शुगर को, तो जो सोल्यूशन है वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, जब अगर ये एक सोल्यूशन सॉलिड फॉर्म में हो तो हम सॉलिड सोल्यूशन कह देते हैं। कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग वही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ दूसरे के अंदर मोल्टन फॉर्म में डिजॉल्व की जा सकती है या थ्रू डिफ्यूजन डिजॉल्व की जा सकती है। ठीक है, जब डिजॉल्व हो जाती है मोल्टन फॉर्म में डिजॉल्व करके उसे सॉलिडिफाई कर लेंगे तो स्टिल सोल्यूशन फॉर्म में रहेगी, तो उसे सॉलिड सोल्यूशन कहेंगे। यहाँ पे ये होता है कि सॉलिड सोल्यूशन जो है सिंगल फेज होता है। ठीक है, जैसे जिस तरह हम ऐड करते जाते हैं, अगर शुगर को ऐड करते हैं वाटर के अंदर, तो जब तक शुगर डिजॉल्व होती रहेगी वो सिंगल फेज में रहेगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है। जब बहुत ज़्यादा चीनी ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे, वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी, बैठना शुरू हो जाएगी, डिजॉल्व भी नहीं होगी। फिर एक नया फेज इसका मतलब जनरेट होना शुरू हुआ है उसके अंदर। ठीक है, अभी टू फेज सिस्टम हो गया। तो जितना पार्ट शुगर का डिजॉल्व हुआ है दैट इज अ सॉलिड सोल्यूशन, और जो पार्ट डिजॉल्व नहीं हुआ दैट इज अ सेकंड फेज। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे लेट्स से कॉपर के अंदर निकल या जिंक के एटम ऐड करते रहें, जब तक ऐड होते रहेंगे दे विल फॉर्म अ सॉलिड सोल्यूशन। जब ऐड होने के बजाय कोई नया कंपाउंड बनाना शुरू कर देंगे, दैट विल बी अ सेपरेट कंपाउंड, और वो जो कंपाउंड होगा वो पोर्शन जो होगा वो सॉलिड सोल्यूशन नहीं होगा, वो एक नया कंपाउंड होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जाने के मजीद आटम भी आ सकते हैं। सो सॉलिड सोल्यूशन यही होता है कि उसकी एग्जैक्ट कंपोजिशन नहीं होती, उसकी बाउंड्रीज वेरी करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये एग्जांपल दी है कि लेट से एक एटम के अंदर दूसरे एटम ऐड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐड होता जा रहा है, दैट इज सॉलिड सोल्यूशन, और इसमें कंपोजिशन वेरी कर रही है। जब बहुत ज़्यादा एटम ऐड करेंगे तो कुछ पोर्शन जो है वो आपस में रिएक्ट कर लेगा और फिक्स्ड प्रोपोर्शन बनाएगा आपस में। ठीक है, दैट इज अ न्यू कंपाउंड। जिस तरह वाटर जो है दैट इज अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज अ कंपाउंड। ठीक है, उसमें शुगर ऐड करते जा रहे हैं, शुगर कम भी ऐड हो सकती है, ज़्यादा भी ऐड हो सकती है, तो दैट विल फॉर्म अ सॉलिड सोल्यूशन। अगर किसी तरह थ्योरेटिकली स्पीकिंग शुगर वाटर से रिएक्ट कर ले, ठीक है, तो एक नया कंपाउंड बना ले, तो वो दैट कंपाउंड विल हैव अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन और स्टाइकोमेट्री ऑफ द एटम्स, दैट विल बी अ न्यू कंपाउंड। ठीक है, तो अगर कंपाउंड नहीं बन रहा देन इट विल बी अ सॉलिड सोल्यूशन, जो आपस में जिसकी बाउंड्रीज वेरी करते हैं, एक चीज़ को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह कॉपर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर FCC है, तो जब उसमें जिंक को ऐड करेंगे या निकल को ऐड करेंगे तो ये उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर FCC ही रहेगा, कुछ एटम बस रिप्लेस करेंगे एक दूसरे को ना। ठीक है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होता है तो नया फेज बन जाता है। नया फेज होगा इसका मतलब है कि नया फेज बन रहा है जब भी, तो इसका मतलब है सॉलिड सोल्यूशन से चीज़ जो है वो एक और फेज की तरफ जा रही है। ओके, सो जिस तरह मैं बता रहा था पहले कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जैसे कैटलिस्ट की बात करें, आजकल गाड़ियों में लिखा होता है कैटालिटिक कन्वर्टर, और समटाइम गाड़ी के पीछे लिखा होता है कैटालिटिक, तो इसका मतलब यह है कि उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर ऐड किया गया जिससे जो पोल्यूशन गैसेज जैसे सॉक्स है, नॉक्स है, या CO कार्बन मोनोऑक्साइड के जो भी वेरिएंट्स हैं, वो सारे जो हैं उन्हें जो है अनबर्न हाइड्रोकार्बन है उन्हें कन्वर्ट किया जाता है उन गैसेस के अंदर जो लेस पॉइजनस हैं या मोर ह्यूमन फ्रेंडली कह लें या एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, तो ये हम डिफरेंट कैटलिस्ट के थ्रू करते हैं। अब वहाँ पे जो कैटलिस्ट ऐड किया जाता है वो उसके सरफेस के ऊपर काफ़ी सारे डिफेक्ट्स होते हैं, और वो डिफेक्ट्स जो हैं देर एक्चुअली द एक्टिव साइट्स, जहाँ जिन पॉइंट्स के ऊपर ये डेंजरस गैसेज जो हैं ये लेस डेंजरस गैसेज में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, सो इन दिस केस द डिफेक्ट्स आर बेनिफिशियल। सो यूजुअली कंसिडर किया जाता है कि डिफेक्ट्स आर ऑलवेज अ बैड थिंग, बट द थिंग इज विद इन अ मटेरियल व्हेन वी आर डिस्कसिंग द मटेरियल साइंस और मटेरियल्स, तो मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर डिफेक्ट्स बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और अनडिजायरेबल भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इट कैन बी अ गुड थिंग, इट कैन बी अ बैड थिंग, so depending upon the application we see if the introduction of defects is better, then if the introduction of defect is better for a particular application, then we will try to add the defect within a material. If the introduction of defect decreases the performance, then we will try to remove the defects in the material. ठीक है, ये जो एक पिक्चर है इसे हम माइक्रोग्राफ कहते हैं, ये एक है हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ है। ठीक है, जिसे TEM भी कहते हैं। इसमें जो लाइंस आपको नजर आ रही है ये एटॉमिक लाइंस है, एटम की लाइंस है।
एक पॉइंट अगर आप देख सकते हैं इसके अंदर, तो एक पॉइंट एक 1 एटम है, ठीक है। तो ये जो सिंगल क्रिस्टल्स हैं ये एक्चुअली यूज होती हैं एज अ कैटालिस्ट। तो इसके ऊपर जैसे ये लेज डिफरेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एक एटम्स की लाइन जो है खत्म हो रही है। इससे क्रिस्टल्स जो हैं, क्रिस्टल में क्या होता है कि इस बार बताया था एटम्स जो है एक लाइन में अरेंज रहता है। इस लाइन को अरेंज कर लें, इस लाइन को अरेंज कर लें, इधर को जिससे ज्यादा लाइकली लग रहा है। तो इस तरह अगर एटम्स अरेंज है एटम की लाइन्स, तो ये लाइन यहाँ पे आकर खत्म हो गई है, ठीक है, यहाँ तक नहीं गई। तो यहाँ पे ये जो लेज से बन रहा है दैट इज एन एक्टिव साइट, ठीक है। डिफेक्टो स्पीकिंग ये एक डिफेक्ट है यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई एक स्टेप बन रहा है इस तरह, ये एक लाइन है, दैट दिस ऑल आर एक्टिव साइट्स बिकॉज देयर आर डिफेक्ट्स, ठीक है। अब इस पूरी लाइन के अंदर कहीं पे यहाँ पे एटम अगर एक मिसिंग होता तो दैट विल बी अ वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो सरफेस से रिएक्ट करते हैं, इसलिए सरफेस डिफेक्ट्स जो है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ये सारी लाइन जो एटम्स की, ये क्रिस्टल है, दूसरा क्रिस्टल है, ठीक है। देख लें इस क्रिस्टल के डायरेक्शन में इस तरह एटम्स हैं, इस क्रिस्टल में इस तरह एटम्स हैं, नीचे क्रिस्टल में इस डायरेक्शन में एटम्स हैं। सो दीज ऑल क्रिस्टल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, किसी में इस डायरेक्शन में एटम है, किसी में इस डायरेक्शन में एटम है, ठीक है। सो और एज के ऊपर ये डिफरेंट डिफेक्ट्स हैं जो दैट विल हेल्प के क्रिस्टल के जो है वो एज अ कैटालिटिक परफॉर्मेंस जो है बेटर हो सके, ओके। सो जिस तरह हमने बात की कि वो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं, इस तरह लीनियर डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। लीनियर डिफेक्ट्स आमतौर पर डिसलोकेशंस होती हैं। सो दीज आर वन डायमेंशनल डिफेक्ट्स अराउंड विच द एटम्स आर मिसअलाइंड एटम, जिस तरह अगर हम इसमें समझें, इसमें लेट्स से ये पूरी लाइन अगर यहाँ पे मिसिंग हो या हाफ लाइन मिसिंग हो एटम्स की, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी एक सीरीज ऑफ डिफेक्ट्स होगी उसे हम लाइन डिफेक्ट कहेंगे। तो लाइन डिफेक्ट में, लीनियर डिफेक्ट्स में एक एज डिसलोकेशन होती है, एक स्क्रू डिसलोकेशन होती है। एज डिसलोकेशन मीन्स के आप समझ लें कि इसी तरह एटम्स अरेंज्ड हैं, इसके अंदर एक लाइन ऑफ एटम्स हमने ऐड कर दिया जो यहाँ तक जाती है, बस फुल आगे तक नहीं जाती। तो उससे क्या होगा कि हम समझ लें कि इसमें एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऐड किया एटम्स का, तो इससे हम कह देते हैं कि ये एक पूरा लाइन ऑफ डिफेक्ट है। इसे हम आगे दिखाएंगे भी ना। स्क्रू डिसलोकेशन एज इन के एक और टाइप ऑफ डिसलोकेशन जिसे स्क्रू डिसलोकेशन कहते हैं। स्क्रू डिसलोकेशन एज इन हेलिकल डिसलोकेशन, स्क्रू के जिसे सरफेस के ऊपर देखें जो ग्रुप्स होते हैं वो हेलिकल होते हैं, ठीक है, वो जैसा राउंड फॉर्म में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तो इस तरह की डिसलोकेशन भी होती हैं। वंस अगेन इससे लीनियर डिफेक्ट, इट मीन्स के स्क्रू डिसलोकेशन में जो एटम्स होंगे वो एक लाइन ऑफ एटम्स होगी जो एक स्क्रू की तरह नीचे से ऊपर की तरफ हेलिकली मूव कर रही है, सही है। तो इस तरह देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लाइन ऑफ एटम्स है, ये लाइन ऑफ एटम्स है, क्रिस्टल में इसी तरह लाइन ऑफ एटम्स अरेंज्ड हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे, अब यहाँ तक ये परफेक्ट क्रिस्टल है, यहाँ पे भी परफेक्ट क्रिस्टल है, देखें ये पोर्शन जो है, ठीक है। अब ये पोर्शन अगर देखें तो ये भी परफेक्ट क्रिस्टल है, एटम्स के ऊपर एटम आए हुए हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो लाइन ऐड हुई है वो उसका इफेक्ट इस जगह पे आके हो रहा है। यहाँ पे आके पूरी एक लाइन ऑफ एटम्स मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी लाइन ऑफ एटम्स मिसिंग है, इसलिए इसे लीनियर डिफेक्ट कहते हैं कि ये पूरी एक लाइन मिसिंग है। तो जो लाइन है वो जो लाइन जो है वो वन डायमेंशनल डिफेक्ट है, तो इसे हम लीनियर डिफेक्ट भी कहते हैं। और ये जो इस तरह के पूरी एक लाइन मिसिंग होती है एटम्स की, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे होनी चाहिए लेकिन है नहीं, ठीक है, तो इन डिसलोकेशन, इस डिसलोकेशन हम एज डिसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। ये पूरी एक लाइन मिसिंग है एटम्स की, तो इससे हम एज डिसलोकेशन कहेंगे। और ये इस तरह प्रैक्टिकल डिसलोकेशन एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इस तरह कोई डिसलोकेशन एग्जिस्ट कर सकती है कि फॉर एग्जांपल एक परफेक्ट इस तरह क्रिस्टल हो, इसमें एक ऊपर वाले पोर्शन को लेट से नीचे वाले पोर्शन को फिक्स कर लें, ऊपर वाले पोर्शन को यहाँ से थोड़ा सा इधर को पुश करें, तो जो कह सकते हैं एटम्स की मूवमेंट होगी एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ पे काइंड ऑफ डिफेक्ट जनरेट होगा, ठीक है। ये जो डिफेक्ट जनरेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड स्क्रू डिसलोकेशन। ये इस तरह घूमता जाएगा ना, ठीक है। इससे हम इधर को मूव कर रहे हैं, इस हमले हेलिकली मूव कर रहे हैं इस तरह। इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि जिस तरह एक रजिस्टर या बुक लें, उसकी एक सरफेस नीचे वाली फिक्स कर लें, ऊपर वाली को थोड़ा सा ऊपर को प्रेस करें, ऊपर वाली सरफेस को शेयर के फॉर्म में प्रेस करें, लेकिन नीचे वाले हाथ रख लें, नीचे वाले सरफेस के ऊपर, ऊपर वाले सरफेस भी हाथ रख लें, एक हाथ को थोड़ा सा पीछे करें, कॉय करें, तो जो है ना ट्विस्ट आता है थोड़ा सा इसके अंदर, किसी बुक या रजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो वो जो ट्विस्टिंग इफेक्ट है उसमें जो डिफेक्ट जनरेट हो रहा है दैट इज स्क्रू डिसलोकेशन इफेक्ट, ठीक है। इसे हम इस एटम्स के फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ना एटम्स जो है ये सारे इस तरह होने चाहिए, इसके ऊपर भी इस तरह होने चाहिए, लेकिन क्या है कि इसे इधर को मूव कर गए हैं। अब ये एटम तो मूव कर गए हैं इसके ऊपर, फिर एटम पूरी लाइन में सीधे हैं, तो डिफेक्ट जो है डिफेक्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है एक्चुअल में। तो ये जो यहाँ पे डिफेक्ट इससे जनरेट होता जाएगा दैट इज अ स्क्रू डिसलोकेशन, ठीक है।
आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन दैट्स हाउ दीज थिंग्स वर्क। हम इससे ज़्यादा डिटेल में इससे आगे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा ये माइक्रोग्राफ में दिखा दें कि यहाँ पे हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में या दूसरे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में हम इसे देख सकते हैं डिस्लोकेशंस को। ये SCM की माइक्रोग्राफ है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें जो लाइन सी नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट नहीं है, ये एक्चुअली एक मटेरियल है, ठीक है, जिसमें ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं ये एक्चुअली डिस्लोकेशंस हैं। सो आप देख सकते हैं रैंडमली ओरिएंटेड है ये इस तरह, और ये एज अ लाइन डिफेक्ट है तो एज अ लाइन मैनिफेस्ट होती हैं, ठीक है। इसी माइक्रोग्राफ को हम इस तरह भी देख सकते हैं, ये TM माइक्रोग्राफ जिसे पहले दिखाया था, ये लाइन ऑफ एटम्स है। देखिए एटम देखें बिल्कुल एक लाइन में ओरिएंटेड है। यहाँ पे आप देख लें एक्स्ट्रा हाफ प्लेन यहाँ तक है, इससे आगे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी परफेक्ट क्रिस्टल है, इस साइड पे परफेक्ट क्रिस्टल है, यहाँ पे भी परफेक्ट है, यहाँ पे भी परफेक्ट है। ये हाफ प्लेन यहाँ पे एंड हुआ है ना, तो यहाँ पे एटम्स की ना अरेंजमेंट थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। तो ये डिस्टर्बेंस जो है इस पॉइंट के ऊपर एक डिफेक्ट है, सिंगल डिफेक्ट है। लेकिन ये पूरी ये जो हाफ प्लेन ऐड हुआ होगा ना, तो ये पूरी एक लाइन ऑफ डिफेक्ट्स होंगे जो समझ लें कि स्क्रीन से बाहर की तरफ और स्क्रीन से अंदर की तरफ यहाँ पे पूरी एक अंदर की तरफ लाइन बनेगी एटम्स की, जो एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डिफेक्ट जनरेट होगा दैट विल बी लाइन डिफेक्ट, ठीक है। सब यहाँ पे भी एरो से लिखा हुआ देख सकते हैं, ये एक लाइन डिफेक्ट है। यहाँ पे स्केल देखिए 1 नैनोमीटर जो है इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ से हम एटम देख सकते हैं, ये एटम्स है, सारी लाइंस जो है ना ये एक्चुअली एटम्स है, ठीक है। सो दिस हाउ द डिस्लोकेशंस और लीनियर डिफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड विद इन अ क्रिस्टल। अब इनकी क्या इंपॉर्टेंस है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ, कि जब एटम्स ने जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बात की कि डिस्लोकेशंस हैं, तो जब एटम्स डिफॉर्म होते हैं तो इट मीन्स कि एटम फिजिकली जब मटेरियल डिफॉर्म होगा, ठीक है, जब किसी भी जिस तरह चीज़ को डिफॉर्म किया जाता है, बेंड किया जाता है, तो उसमें एटम फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। तो ये जाहिर जब मूवमेंट होगी तो ये मूवमेंट जो है, दिस मूवमेंट अकर्स थ्रू डिस्लोकेशंस। जब एटम जब मटेरियल ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, इसका मतलब है एटम ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। तो ये नहीं होता कि रैंडमली एटम यहाँ से इधर निकल गया, यहाँ से इधर निकल गया। हमेशा ये लीनियर डिस्लोकेशन या डिस्लोकेशन जनरेट होते हैं मटेरियल के अंदर, या जो ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हैं, या फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल मेल्टिंग से सॉलिडिफिकेशन के दरमियान प्रोड्यूस होती हैं। ये डिस्लोकेशन एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, ठीक है। जिस तरह हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लें, ये लीनियर डिस्लोकेशन है, यहाँ पे है। लेट्स से यहाँ से इधर को फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ से इधर को फोर्स अप्लाई करते हैं, तो एटम जो है ये एटम यहाँ पे चले जाएंगे, ये एटम इनकी जगह यहाँ पे चले जाएंगे, ये एटम यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल जो है मटेरियल जो है थोड़ा सा इधर मूव कर गया, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा इधर हो गया, यहाँ थोड़ा सा इधर हो गया। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस तरह लग रहा है कि जिस तरह डिस्लोकेशन यहाँ से यहाँ चली गई है, फिर यहाँ से यहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ चली गई है। तो इट मीन्स कि डिफेक्ट तो ऐसा लगता है जैसे डिस्लोकेशन मूव कर रही हो। सो मटेरियल मूव्स थ्रू डिस्लोकेशन व्हेन इट डिफॉर्म्स, ओके। सो नेक्स्ट टाइम मैं इसमें आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, या अब मैं देखता हूँ वीडियो ना। तो इससे हम कहते हैं कि यहाँ पे ना डिस्लोकेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं विद इन अ सिस्टम। तो ये डिस्लोकेशन के थ्रू मटेरियल जो है वो डिफॉर्म होता है। जब एटम्स मूव करेंगे तो एटम रैंडमली मूव नहीं करेंगे, ये थ्रू डिस्लोकेशन मूव करेंगे। एज डिस्लोकेशन जनरेट होंगी या पहले से जो है वो मूव करेंगी ऑर्डर्ड फैशन में। तो एक समझ लें एक लाइन ऑफ एटम्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, ठीक है। लाइन ऑफ एटम जब मूव करेंगे तो ऐसा नहीं होता कि एटम जो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। ये मूव करते हैं इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑन अ स्पेसिफिक प्लेन्स, ठीक है। और ये स्पेसिफिक प्लेन्स एंड डायरेक्शन हमने मिलर इंडिसेस के थ्रू डिफाइन की थी, जैसे पिछले चैप्टर में हम कर चुके हैं, ठीक है। सो डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट डायरेक्शंस में एटम मूव करेंगे। एटम हमेशा मूव करेंगे जब एटम दूसरे अटैच होता है तो ये एटम यहाँ पे जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एटम यहाँ से निकल के यहाँ पे चला जाए, या एटम यहाँ से निकल के हवा में निकल के इधर को चला जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इधर को जाएगा, या इस एटम को साथ जो कॉन्टैक्ट में एटम होगा उसकी जगह जा सकता है, ठीक है। ये डायरेक्शन जो है एटॉमिक लेवल पे मिलर इंडिसेस के थ्रू डिफाइन की थी। और ये डायरेक्शन जितनी ज़्यादा अवेलेबल होंगे एटम के पास, उतना इजी है डिफॉर्म होना, और उतना मटेरियल जो ज़्यादा डक्टाइल होगा। अब एफसीसी में बहुत सारे क्लोज पैक्ड या हाई डेंसिटी प्लेन्स और डायरेक्शंस अवेलेबल होती हैं, इसलिए एफसीसी मटेरियल जो है वो आमतौर पे डक्टाइल होते हैं। जिस तरह कॉपर जो है डक्टाइल है, जिंक जो है वो भी मतलब इस तरह के मटेरियल जो है आमतौर पर डक्टाइल है। अब एचसीपी जो है एक और क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ एक प्लेन और 3 डायरेक्शंस अवेलेबल हैं।
जैसे मैग्नीशियम है या SiP, ये आमतौर पे इतना डक्टाइल नहीं है, ये थोड़ा ब्रिटल टाइप का बिहेवियर शो करता है। एल्यूमिनियम फॉर एग्जांपल, ये भी FCC है, तो ये ज़्यादा डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं मटेरियल की, और वो इससे डिपेंड करते हैं एटॉमिक मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्लोकेशन मूवमेंट की कुछ वीडियोस देख लेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।